Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we were reading chapter 5 around the word in pancakes of our English literature book as Shasta. Students, in our last video, our topics were summary of first, second and third stanzas, and since our second number topic was hard words, so students included these topics we have read and explained summary of first, second and third stanzas, which will be number 39 of this chapter 5. And since we have also read and note on 20 hard words of the chapter 5 around the word in pancakes in our Fad English literature notebook in our last video. And since today's our topics are a summary of 4th and 5th and 6th stanzas, and second number topic is word meaning. So students included these topics. Today we will read and explain summary of 4th, 5th and 6th stanzas, which will be number 40 of this chapter 5, and then we will read and note down 16 word meanings of this chapter 5 around the word in pancakes in our Fad English literature notebook. Okay, so all students please press partial attention class and listen to my words clearly, because today we are going to read and explain summary of 4th, 5th and 6th stanzas, which will be number 40 of this chapter 5. And then we will read and note down 16 word meaning of this chapter 5 around the word in pancakes in our Fad English literature notebook. Okay, so all students, let's see chapter 5. Student, the name of this chapter 5 is around the word in pancakes. Okay, around the word in, it's mean दुनिया भर में, pancakes means pancakes. Around the word in pancakes, it's mean दुनिया भर में pancakes. Okay, students, in this chapter 5 around the word in pancakes, we are talking about pancakes. Chapter 5 around the word in pancakes में हम पैनकेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, इट्स मीन कि दुनिया के कोने कोने में जो अलग अलग तरह के केक बनाए जाते हैं ना, जो डिफरेंट फ्लेवर के, डिफरेंट टेस्ट के, डिफरेंट शेप के एंड डिफरेंट साइज के होते हैं. ओके, इन सबको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले पैनकेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पेज नंबर 40. लेट्स सी 4 number stanza of this chapter 5. Students, of 4 number stanza is try to imagine yourself in a tropical environment such as on a beach in Thailand, or in the cold frosty plains of Poland, or even in the faraway Andes mountains. The one thing you are sure to be served in all of these places, although with different sauces and toppings, is a pancake. Okay, students, so here the meaning of tropical environment. Okay, tropical environment means students होता है slightly warmer and humid एरिया. ओके, बहुत ही गर्मी और उमस भरी जो एरिया होती है ना, उसे बोलते हैं हम ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट. ओके, तो आप स्वयं को ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में इमेजिन करिए. आप खुद को इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक थाईलैंड के किसी बीच में हो. ओके, या आप इमेजिन कर सकते हो कि आप पोलैंड में हो, जहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ फैली हुई है. ओके, बर्फीले मैदान है वहाँ. या आप ये भी इमेजिन कर सकते हो, ये भी कल्पना कर सकते हैं कि आप बहुत दूर एंडेस माउंटेन्स में हैं. ओके, इन सभी जगहों पर आप बिल्कुल श्योर होते, बिल्कुल निश्चित होते कि यदि आप इन स्थानों में से कहीं भी जाते हैं खाना खाने के लिए, इन स्थानों में से, तो आपको पैनकेक्स ज़रूर सर्व किया जाएगा. ओके, एज अ फूड आइटम हो सकता है कि पैनकेक्स के ऊपर जो डेकोरेटिव जो पार्टिकल्स होते हैं, डेकोरेटिव जो मटेरियल होते हैं, जैसे सॉस हो गया. ओके, और उसके ऊपर जो गार्निश किए जाने वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो पैनकेक्स होते हैं ना, वह बिल्कुल सिमिलर होता है एक दूसरे से. ओके, तो स्टूडेंट्स, इस ग्लोबल में दिखाया गया हुआ है. ओके, लुक एट दिस पिक्चर. ओके, इस ग्लोबल में दिखाया गया कि दुनिया के डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स को दिखाया गया. ओके, इन डिफरेंट पार्ट्स में इस जो ग्लोबल है, ये जो अर्थ है, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स में खाए जाने वाले पैनकेक्स उनके टॉपिंग, उनके डेकोरेशन के साथ दिखाए गए. ओके, देखो बहुत सारी यहाँ पे डिशेस है ना. ओके, थालियाँ और उन पे पैनकेक्स रखे हैं ना. तो स्टूडेंट्स, ये दिखाया गया है कि सभी डिशेस में पैनकेक्स है. ओके, बट सभी में डिफरेंट केक्स है. ओके, मतलब अलग अलग केक है पैनकेक्स ही, बट इनका जो टॉपिंग है, ओके, और इनका जो डेकोरेशन है, ओके, जो इनके ऊपर सॉस वगैरह लगाई गई, फ्रूट्स का जो गार्निश किया गया वो डिफरेंट है. ओके, तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट stanza. When discussing pancakes, the first thing we must do is to answer an important question: what is a pancakes? Okay, it's mean कि when discussing pancakes, okay, जब हम pancakes के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जब हम पैनकेक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ओके, तो सबसे पहले हमें तो ये चीज़ करनी चाहिए कि हमें एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देना चाहिए. ओके, और स्टूडेंट्स, वो हमारा क्वेश्चन क्या है जिसका आंसर देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ अ पेनकेक. ओके, कि पेनकेक है क्या. ओके, तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लुक एट द वर्ड पेनकेक इटसेल्फ, द मीनिंग सीम्स obvious as the
as the word itself indicates, it is a cake that is made on a pan. Okay, while this is the basic definition of a pancake, there are many different ways in which pancakes are made. People from different parts of the world use different ingredients, different techniques, and even different utensils, since some pancakes can be made without a pan and still be called a pancake. Okay, just if you look at the word, okay, यदि आप अगर आप वर्ड जो है, ये जो शब्द है पेनकेक, इसको अगर इस पे ध्यान देते हैं ना, इसको देखते हैं, ओके, तो ये खुद से ही दिखाता है, तो मीनिंग काफ़ी स्पष्ट हो जाती है पेनकेक की, क्योंकि ये पेनकेक वर्ड हमें खुद बताता है, खुद ये इंडिकेट करता है कि खुद से हमें ये बताता है कि ये एक ऐसा केक है जिसे पेन में बनाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, इंडिया में पेन को तवा भी बोलते हैं. ओके, तो ऐसा केक जिसे पेन में बनाया जाता है उसे बोलते हैं पेन केक. ओके, तो इंडिया में पेन को तवा भी बोलते हैं. तो तवे में बनाए जाने वाला केक, और वी कैन आल्सो दैट कि पेन में बनाने वाले केक को पेन केक बोलते हैं. ये एक बेसिक डेफिनेशन है पेन केक की. ओके, कि एक ऐसा केक जो पेन में बनाया जाता है वो उसे पेन केक कहते हैं. बट स्टूडेंट्स, हालांकि काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं पेन केक्स को बनाने के लिए. ज़रूरी नहीं कि पेन केक्स को पेन में ही बनाया जाए. ओके, अलग अलग देश के लोग, अलग अलग जगहों के लोग पेन केक्स को बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं. हियर द मीनिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स. ओके, इंग्रेडिएंट्स मीन्स होता है स्टूडेंट सामग्री. ओके, हियर द मीनिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इट्स मीन सामग्री. इट्स मीन कि जिसे मिलाकर हम पेन केक को बनाते हैं ना, उन्हें बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं होता कि जो केक पेन में बनाया जो सी पेन केक है. ओके, एंड स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोग जब पेन केक बनाते हैं ना, तो अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं, अलग अलग स्टेप्स अपनाते हैं. ओके, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, अलग अलग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं. ओके, यूटेंसिल्स, हियर द मीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स दैट बर्तन. ओके, हियर द मीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स दैट बर्तन. ओके, और ज़रूरी नहीं है कि पेनकेक पेन में ही बनाया जाए. ओके, जैसे ब्रैकेट में दिया हुआ है कि कुछ ऐसे पेनकेक्स होते हैं ना जिन्हें बिना पेन के बनाया जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें पेनकेक्स कहते हैं. तो यहाँ पर बेसिक जो डेफिनेशन दी हुई है ना, कि उसे ये कन्फर्ट कर रहा है कि ज़रूरी नहीं होता कि पेनकेक को पेन में ही बनाया जाए. ओके, तभी वह पेनकेक कहलाए. ओके, हर एक तरह के पेनकेक टेस्ट में भी डिफरेंट होते हैं. ओके, इनका टेस्ट भी डिफरेंट होता, अलग होता है. इनका स्वाद डिपेंड इस पर करता है कि उस पेनकेक को बनाया कैसे जाता है. ओके, and of course this mean that made without a pen and still be called a pancake. And students, let's see that okay, we have read if you look to pancake. Okay, of course this means that each type of pancakes will taste very different depending on how it is made. Okay, तो ये इस पर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है कि उस पेनकेक को हम बना कैसे रहे. ओके, एंड स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट, इट इज़ मेड. ओके, कि इसे कैसे बनाया जाए. सम मे नॉट इवन बी स्वीट. ओके, तो कुछ यहाँ तक कि स्वीट भी नहीं होते, मीठे भी नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हैव यू एवर ईटन अ डोसा. क्या आपने कभी एक डोसा खाया है? ओके, and that is a kind of savory pancake that people in southern India eat for breakfast. Okay, that is a kind of savory pancake. जो एक savory pancake का एक जो kind है, एक प्रकार है. ओके, जो डोसा है ना, ये savory pancake का एक kind, एक प्रकार. अभी तो आप डोसा को एक डिश ही समझते थे, आज आपको पता चला होगा कि जो डोसा है ना, वो एक savory pancake का एक kind है. ओके, savory pancake का एक प्रकार है. ओके, तो स्टूडेंट्स, डोसा सैवरी पेनकेक का एक प्रकार है दैट पीपल इन साउथर्न इंडिया. ओके, जो दक्षिणी भारत के लोग अपनी ब्रेकफास्ट के लिए खाते हैं. ओके, और स्टूडेंट्स, डोसा इज़ द मेन डिश ऑफ तमिलनाडु. जो डोसा होती है ना, ये तमिलनाडु की मेन डिश होती है, मुख्य डिश होती है. ओके, और डोसा जो है वो एक सैवरी पैनकेक होता है. सैवरी पेन का एक काइंड है, सैवरी पेनकेक का एक प्रकार है. ओके, एंड स्टूडेंट्स, हर एक तरह के पेनकेक टेस्ट में भी डिफरेंट होते हैं, और डिपेंड इस पर करता है कि उस पेनकेक को कैसे बनाया जा रहा है. और पेनकेक जो मेथड होते हैं ना, और जो एक पेनकेक का जो मेथड होता है और दूसरा जो दूसरे मेथड से जो पेनकेक बनाया जाता है, दोनों के बीच अंतर होता है, दोनों के टेस्ट डिफरेंट होते हैं. ओके, जनरली पेनकेक्स जो होते हैं वो स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं. अब यहाँ ये बताया जाए कि कुछ पेनकेक्स तो ऐसे होते हैं जो मीठे भी नहीं होते. ओके, और फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने कभी डोसा खाया है, और यहाँ एक तरह का सैवरी पेनकेक्स होता है डोसा. ओके, स्टूडेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ सैवरी. सैवरी मीन्स स्टूडेंट्स होता है स्पाइसी एंड साल्टी. इट्स मीन कि मसाले और नमकीन. ओके, मतलब मसालेदार और नमकीन जो होता है उसे बोलते हैं सावरी. ओके, जो मसाले और नमकीन होता है उसे बोलते हैं सावरी. ओके, तो जो डोसा होता है उसमें मसाले होते हैं और नमक होता है, वो मसालेदार और नमकीन होता है.
और इंडिया के जो दक्षिणी पार्ट है, ओके, साउथर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, ओके, ये जो इंडिया के साउथ इंडिया वाली पार्ट है, यहाँ पे लोग सावरी पैनकेक्स को ब्रेकफास्ट में खाते हैं। यहाँ डोसा को ब्रेकफास्ट के लिए खाते, ओके। एंड स्टूडेंट्स, एंड अब से एंड लेट्स सी नेक्स्ट, and that's not the only one. Savory pancakes are also made in Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka, as well as in Central and South American countries like Costa Rica, Venezuela and Brazil. Okay, तो students, and that's not the only one. Okay, it's mean कि अब सिर्फ इतना ही नहीं है। ओके, इट्स मीन कि ये डोसा सिर्फ इंडिया के साउथर्न पार्ट में ही नहीं खाया जाता है, बल्कि ये सावरी पैनकेक्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में, सेंट्रल और साउथ अमेरिका कंट्रीज़ में, जैसे कोस्टा हो गया, कोस्टा राइस है, वेनेजुला है, ब्राज़ील है, ओके, यहाँ पर भी ये सावरी पैनकेक खाया जाता है। अफ्रीकन देशों में, यूरोपियन जैसे देश है, ओके। एंड स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट, इन अफ्रीकन कंट्रीज लाइक Ethiopia and Eritrea and Somalia, people make sour pancakes, while in some parts of France, Lithuania and Estonia, people even make slightly bitter pancakes. Okay, और यहाँ तक कि अफ्रीकन देशों में, ओके, अफ्रीकन देशों में, जो अफ्रीका की जो कंट्रीज़ है, जैसे इथियोपिया हो गया एंड इरिट्रिया हो गया एंड सोमालिया हो गया, ओके, यहाँ पे जो लोग हैं ना, ये सौर पैनकेक्स बनाते हैं, खट्टे पैनकेक्स बनाते हैं, ओके। जबकि विश्व के कुछ अलग देशों में, कुछ अलग कंट्रीज़ में, जैसे कि हमारा हो गया फ्रांस हो गया, लिथुआनिया हो गया एंड इस्टोनिया हो गया, यहाँ पर लोग थोड़े तीखे और कड़वे पैनकेक बनाते हैं। हाउ कैन यू इमेजिन कि पैनकेक्स तीखे कड़वे हो सकते हैं या सौर हो सकते, खट्टे हो सकते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ स्वीट ही पैनकेक ईट किया हुआ है, खाया हुआ है ना। स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट, हाउएवर दे ऑल हैव अ फ्यू फीचर्स इन कॉमन. दे आर मेड यूजिंग अ लिक्विड बैटर विच इज स्प्रेड एंड कुक्ड ऑन अ हीटेड फ्लैट सरफेस. ओके, तो स्टूडेंट्स, हाउएवर इट्स मीन यद्यपि, ओके, तो आप देख सकते हैं कि पैनकेक्स के टेस्ट में भी काफ़ी डाइवर्सिटी है, जैसे स्वीट हो गया, साल्टी हो गया, स्पाइसी हो गया, बिटर हो गया, ओके। हालांकि इन सभी में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं होती है कि जो इनमें एक कॉमन होती है, जो समान होती है, इनको बनाने के लिए लिक्विड बैटर का यूज़ किया जाता है। ये एक कॉमन चीज़ है, एक कॉमन बात है, ओके। स्टूडेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ लिक्विड बैटर. ओके, लिक्विड मीन्स होता है तरल, एंड हियर द मीनिंग ऑफ बैटर दैट मिक्सचर ऑफ फ्लोर, वाटर एंड सम अदर इंग्रेडिएंट्स फॉर फ्लेवर. ओके, मिक्सचर ऑफ फ्लोर इट्स मीन कि आटे का एक मिक्सचर, ओके, आटे का और वाटर का एक मिक्सचर, ओके, एंड सम अदर इंग्रेडिएंट्स फॉर फ्लेवर. ओके, और कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट्स, कुछ दूसरी सामग्री और फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए उसका एक जो मिक्सचर बनाया जाता है उसे बोलते हैं बैटर. ओके, तो स्टूडेंट्स, फ्लोर, वाटर और कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स फॉर फ्लेवर का जो एक मिक्सचर होता है उसे बोलते हैं बैटर. ओके, आटा, पानी और टेस्ट लाने के लिए, फ्लेवर लाने के लिए जो कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके जो मिक्सचर बनाया जाता है उसे बोलते हैं बैटर. ओके, एंड हियर द मीनिंग ऑफ बैटर वी कैन से दैट कि जब आटे को गूंथने के लिए ना उसमें पानी डालकर और उसमें फ्लेवर लाने के लिए, उसमें टेस्ट लाने के लिए जब कोई दूसरा इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ना, उसका जो एक घोल तैयार करते हैं, एक लिक्विड बैटर तैयार करते हैं, एक तरल घोल तैयार करते हैं, उसे बोलते हैं हम बैटर. ओके, एंड स्टूडेंट्स, ये कॉमन चीज़ है कि आपको किसी भी टाइप का केक बने, किसी भी कंट्री में चले जाए जहाँ वो केक बनाया जाएगा ना, तो हो सकता है कि उसका डेकोरेशन अलग हो, उसका टॉपिंग अलग हो, लेकिन स्टूडेंट्स, एक केक बनाने के लिए, एक पेन केक बनाने के लिए ना, एक लिक्विड बैटर सबसे पहले ज़रूर बनाया जाएगा. ये कॉमन चीज़ है पेन केक बनाने के लिए. ओके, तो ये कॉमन चीज़ होती है कि पैनकेक्स बनाने के लिए लिक्विड बैटर होना चाहिए. फिर आप किसी भी तरह का पैनकेक्स बना रहे हो, ओके, वो स्वीट हो, बिटर हो, सॉर हो, या किसी भी कंट्री के कोने में बना रहे हो, ओके, कि उस बैटर को एक गर्म और फ्लैट सरफेस में क्या किया जाता है, डाला जाता है. ओके, और जब ये लिक्विड बैटर बनता है ना, तो इस लिक्विड बैटर को विच इज स्पीड, जिसे फैलाया जाता है, स्पीड मीन्स होता है फैलाना, ओके, एंड कुक्ड ऑन अ हीटेड, और इसे हीट किया जाता है, ओके, गर्म किया जाता है. तो इस लिक्विड बैटर को एक गर्म और फ्लैट सरफेस पर रखकर इसे पकाया जाता है, इसे सेका जाता है. फ्लैट सरफेस इट्स मीन एक बोल सकते हैं एक फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सतह, ओके, सरफेस में सतह, ओके, एक समतल सतह पर रखकर इसे पकाया जाता है. ओके, तो इस लिक्विड बैटर को एक गर्म और फ्लैट सरफेस पर रखकर पकाया जाता है, इसे सेका जाता है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड एंड एक्सप्लेन समरी ऑफ 4th, 5th and 6th stanzas, which is page number 40 of this chapter 5, and I hope you must have understood summary of 4th, 5th and 6th stanzas. You have no problem in any stanzas.
okay, which we have read today. And since we will read the next stanzas of this chapter 5 around the word in pancakes in our next video. And now we are going to read and note down word meaning of this chapter 5 around the word in pancakes in our Fad English Literature notebook. So let's say word meaning. Students, your first number word is culinary, and the meaning of culinary is related to cooking or food. Okay. And since your second number word is consumed, and here the meaning of consumed at eaten. Okay. Third number word is humbled, and since here the meaning of humbled at modest. And since your fourth number word is ingredients, and the meaning of ingredients is raw materials used to make a particular dish. Okay. And fifth number word is batter, and since here the meaning of batter at mixture of flour, water and some other ingredients for flavor. And since your sixth number word is savory, and since here the meaning of savory that is spicy or salty. Okay. And since your 7 number word is texture, and since the meaning of textures that the feel of something easy, rough, smooth or delicate. Okay, since your 8 number word is smeared, and since here the meaning of smeared that spread an oily or soft substance over a surface in a careless way. Okay, since your 9 number word is fossils, and since here the meaning of fossils that the remains of an animal or plant that have hardened into rock. Okay, since your 10 number word is simplicity, and since here the meaning of simplicity that the quality of being easy to understand or use. Okay, and since your 11 number word is cottons, and since here the meaning of cattles. Okay, cattleails, and since here the meaning of cattles that a type of plant. Okay, and since your 10 number word is beaten, and since here the meaning of beaten that whisked, yeah, stirred. Okay, and since your 13 number word is smoothed, and since here the meaning of smooth and that flattened, round. And since your 40 number word is blend, and since here the meaning of blend that mix. And since your 15 number word is affordable, and since here the meaning of affordable that inexpensive, can be bought easily. Okay, and since your last 16 number word is buckwheats, and since here the meaning of buckwheats is a type of seed that can be used to make flour. Okay, so since we have read and note down these word meaning of this chapter 5 around the world in pancakes in our Fad English Literature notebook, and I hope you must have understood these word meanings of this chapter 5. You have no problem in any word meaning of this chapter 5. Okay, so students, today's your classwork is that note down these words meaning of this chapter 5 around the word in pancakes in your Fad English Literature notebook with your best handwriting. It's your today's classwork. And students, your homework is that learn word meaning of this chapter 5 around the word in pancakes in your from your Fad English Literature notebook. It's your today's homework. And students, I hope you have no problem for learning because students, I have explained all word meaning of this chapter 5 around the word in pancakes. Okay, so all students, firstly complete your classwork. Note down these words meaning of this chapter 5 around the word in pancakes in your Fad English Literature notebook with your best handwriting, and send me over. Thank you.